Welcome back, students. This is our 11th lecture from chapter number 5, Variety of Life. In this chapter, we have so far studied about the introduction of viruses, structure of bacteriophage and the life cycle of bacteriophage. And in today's lecture, we are going to learn about how many types of viral diseases are being found in the plants and in the animals. So we are going to start from the different types of animal diseases and how different viruses and how many types of viruses are going to or cause the diseases of different animals and humans as well. So the famous diseases are polio. Polio virus causes poliomyelitis, and the type of virus which is it is unenveloped virus. ठीक है, ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस होता है और अनएनवेलप्ड होता है. अनएनवेलप्ड आपको बताया था. There are two types of viruses in the nature as per the type of envelope. कि some are enveloped and some are non-enveloped. जो enveloped होते हैं वो ज़्यादा जो है वो virulent होते हैं और जो unenveloped होते हैं वो थोड़ा कम virulent होते हैं. Rhinovirus causes the cold diseases in the humans and in the animals as well. And the third type of famous virus is Arbor Viruses. In this category, there are multiple type of diseases we can found. Encephalitis, dengue, yellow fever. Encephalitis is the name of the disease which you have, I believe you haven't heard before. Dengue and yellow fever you must have heard before. So encephalitis is a disease in which the virus causes inflammation of the brain. So inflammation in the brain causes the malfunction of the brain. So it causes a lot of disruption in the procedures of the body and different physiological procedures. The virus is being transported mainly via arthropods. So the vector for this virus is arthropods. And the next category is human immunodeficiency virus, which we normally call as HIV virus. And the category from which it belongs is retrovirus. The category is retrovirus, and retroviruses are RNA viruses and sometimes also the DNA viruses, but HIV is a RNA virus which has 2 RNA strands. But both of these strands are non-complementary. किस तरह से ये डिजीज़ कॉज करते हैं, किस तरह से इनका ट्रांसमिशन होता है, we will study it in detail in the next lecture. Rhabdovirus. Rhabdovirus causes rabies. Again, rabies is also a disease which is being transmitted by animal. ठीक है, और ये भी रेबीज़ का आपने नाम ज़रूर सुना होगा, लेकिन you must don't know about the how it causes the infection and what is the cause of the symptoms. Actually, rabies is also the inflammation of the brain, just like encephalitis, and the transmission is caused by the bite of the animal bite. Most famous animal which is being known for the rabies is dogs. The saliva carries the virus, and when the infected animal bites the person, the virus gets transmitted from the wound via the saliva. Saliva के थ्रू पास होता है. ट्रांसमिशन किससे हो रही है? सलाइवा के थ्रू हो रही है. और एंट्री कहाँ से हो रही है? वुंड के थ्रू हो रही है. And the next category is paramyxoviruses, which causes very famous diseases measles and mumps. The last category is flu virus. There are multiple type of flu viruses found in the nature and for the cold as well. अभी दुनिया में कोल्ड और फ्लू की इतनी ज़्यादा वायरसेस की जो टाइप्स हैं वो आइडेंटिफाई हो चुकी हैं और हम जान चुके हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा वैरायटी होती है वायरस की कैटेगरी की किसी डिजीज़ को करने की, उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है उस वायरस को कंट्रोल करना. क्योंकि वायरल डिजीज़ के अंदर आप ये बात जान लीजिए कि क्योर करना उनका बहुत मुश्किल है, क्योंकि वायरस जो एंटाइटी है वो DNA के साथ आपके इंटीग्रेट हो जाती है. जब कोई चीज़ DNA के साथ इंटीग्रेट हो जाती है और फिर वो आपके ही सेल्स को यूज़ कर रही है आपकी ही बॉडी के खिलाफ, देन इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू कंट्रोल इट. हाउएवर इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल बट क्वाइट डिफिकल्ट इन वैरायटी ऑफ डिजीजेस. इसीलिए वायरस के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको सुनने में आएगी कि उसको प्रिवेंट कैसे किया जाए, यानी होने ही ना दिया जाए. प्रिवेंशन इज इम्पॉर्टेंट इन द केस ऑफ वायरस, कि उसका ट्रांसमिशन रोक दिया जाए रादर देन द क्योर, बिकॉज क्योर इज क्वाइट डिफिकल्ट.
सो जब हम फ्लू वायरसेस की और कोल्ड वायरसेस की बात करते हैं, सो अराउंड 200 टाइप्स ऑफ कोल्ड वायरसेस आर बीइंग आइडेंटिफाइड इन द नेचर। और जितनी ज़्यादा हमें मिलती है वैरायटी, उतना ही ज़्यादा किसी वायरस के लिए हमें वैक्सीन बनाना मुश्किल हो जाता है। जब हमने बात की कि हम प्रिवेंशन की बात करते हैं कि हम रोक सकें किसी वायरस को, तो प्रिवेंशन कैसे करते हैं? हम वैक्सीन बना के करते हैं, ठीक है। या तो पर्सन की इम्यूनिटी बढ़ाई जाए, अगर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है सो यू कैन कॉम्बैट दैट वायरस, अदर देन दैट वैक्सीनेशन इज़ द ओनली पॉसिबल वे। तो जब हम वैक्सीन बनाने की बात करते हैं तो वैक्सीन के लिए किसी भी वायरस का, किसी एक सिंगल वायरस का पर्टिकुलर जीनोम हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जितनी ज़्यादा किसी डिजीज़ के लिए वायरस की तादाद ज़्यादा होगी कि भाई ये वायरस भी कर सकता है ये डिजीज़ और ये वायरस भी कर सकता है, उसी के वेरिएंट्स हैं डिफरेंट, तो फिर वैक्सीन बनाना मुश्किल अमल हो जाता है साइंटिस्ट के लिए। सेम इज़ द केस विद द कोरोना वायरस कि उसके बहुत ज़्यादा अभी तक जीनोम की वैरायटीज़ सामने आ रही हैं, तो इसीलिए अभी तक फाइनल वैक्सीन अभी तक डिसाइड नहीं हो सकी है। अब ये जो वायरसेस हैं अभी हमने जिनके नाम देखे, रेब्डो वायरस, पैरामिक्सो वायरस, फ्लू वायरसेस, ऑल थ्री ऑफ देम आर नेगेटिव स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस, ठीक है, नेगेटिव स्ट्रैंड। These are the types of the famous diseases and the famous viruses which cause the diseases in the animals. अब हम बात करते हैं कि प्लांट डिजीजेस। प्लांट डिजीजेस बहुत सारी हैं, लेकिन आपके कोर्स में उनके नाम बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड नहीं हैं। और जो मेजर बात आपको बताई जानी है आपके कोर्स के मुताबिक वो ये कि प्लांट डिजीज़ में ट्रांसमिशन कैसे होता है। पहली बात, जो डिजीज़ का नाम अभी तक आपने जाना है, जो जहाँ से वायरस का आपको पता चला कि वायरस क्या, कौन सी एंटाइटी है, वायरस है क्या, वो आइडेंटिफाई ही प्लांट से हुआ, जिसे हम कहते हैं टोबैको मोज़ैक वायरस। ये वो वायरस है जो कि आइडेंटिफाई हुआ पहली बार एज ए वायरस और प्लांट से आइडेंटिफाई हुआ, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ट्रांसमिशन कैसे होता है। देयर आर 2 मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन फॉर द इन द प्लांट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन वो है जिसके अंदर किसी आउटर सोर्स से वायरस ट्रांसमिट हो, यानी कि किसी वेक्टर के थ्रू हो जाए और किसी वुंड के थ्रू एंट्री हो जाए वायरस की, किसी इंसेक्ट ने बाइट किया, किसी इन्फेक्टेड इंसेक्ट ने बाइट किया और वो वेक्टर के तौर पे उसने काम किया और वायरस को ट्रांसमिट कर दिया प्लांट के अंदर। दैट इज़ द हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन, ठीक है। Vertical transmission is a type of transmission in which virus is being transmitted from the parent body. ये कैसे होगा? If the plant is infected and then it produces a seed, it produces a fruit and fruit carries the seed, then the virus can be transmitted from the body to the seed. तो ये जो ट्रांसमिशन है ये क्या है? ये वर्टिकल ट्रांसमिशन, जिसके अंदर एक जो ऑफस्प्रिंग है वो कैरी कर रही है वायरस को अपने पेरेंट बॉडी से। So these are the 2 basic modes of transmission in the plants. So hope you guys have understood today's lecture. We will continue our chapter in the next lecture. So see you in the next video.